Okay, limit x tends to 0, 1 plus 3 upon 5 plus 7 upon x. आई थिंक इस तरह का सम अपने को बेटा पहले भी आया हुआ है, ठीक है. सो अगेन आई एम डूइंग, इसमें आपको क्या करना है, यू विल हैव टू टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर. सो द एलसीएम वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 3 अपॉन, बेटा x एलसीएम हो जाएगा, सो x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, 5x plus 7 सो इट इज 5x plus 7 अपॉन x. ठीक है. x. अब ये जो x है बेटा वो ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज लिमिट x tends to 0, 1 plus 3x upon 5x plus 7. अब ये जो 5x plus 7 है वो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगेन एलसीएम आई विल टेक, सो लिमिट x tends to 0, 5x plus 7 will be LCM, so 1 into 5x plus 7 plus 3x, so that is limit x tends to 0, 5x plus 7 plus 3x upon 5x plus 7, so that is limit x tends to 0, 5x plus 3x is 8x plus 7 upon 8x plus 7. अब निकलना है तो x कॉमन निकलना है, वरना कुछ भी नहीं निकलेगा. तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो बिंदास x में तुम लोग 0 रख दो. सो 8 into 0 plus 7 upon 5 into 0 plus 7, so that is 0 plus 7 upon 0 plus 7, so 7 upon 7, so the answer is 1. बोलो clear? I am doing 70 का f बेटा. 70 के f में ऐसा है, लिमिट x tends to 4, 3x plus 2k is equal to 22. Find the value of k. So it's very easy बेटा, कुछ भी नहीं करना है इसमें. x में सीधा 4 रख दो. x में क्या रख दो? 4. So 3 into 4 plus 2k is 22. So 12 plus 2k is 22. 12 goes over there. So 2k is equals to 10. So k is equals to 5. Yeah. Upon x square minus 16. So that is limit x tends to 4. अब बेटा देखो, x tends to 4 है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि x minus 4 ही कॉमन निकलेगा. तो ये है x के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. सो ये हुआ लिमिट x tends to 4, x square minus 16, x square plus 16 upon x minus 4, x plus 4. This is further x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर. समझो बेटा, ये फिर से x स्क्वायर माइनस 16 को मैंने फिर से, ये देखो, दिस इज x का स्क्वायर और दिस इज 4 का स्क्वायर. ठीक है. सो फिर ये x स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज अपॉन x minus 4, x plus 4. So that is limit x tends to 4. This is x minus 4, x plus 4. इसके फैक्टर्स बेटा, और ये x square plus 16 as it is upon x minus 4, x plus 4. So x minus 4, x minus 4, x plus 4, x plus 4 cancels. और अब जो बचा है वो मैं लिख लेता हूँ. It is limit x tends to 4, x square plus 16. So बिंदास अपने क्या करेंगे, x में 4 रख देंगे. So मुको x में 4, so 4 का स्क्वायर plus 16, तो 16 plus 16. So the answer is 32. Clear everybody? And now I am doing sixth sum in that. It states limit x tends to 2, root of 2x plus 1 minus root of 5 upon x minus 2. So consecutive multiplication. So multiply by root 2x plus 1 plus root 5 divide by root
2x plus 1 plus root 5. So this is a minus b. This is a plus b. So that is limit x tends to 2 root 2x plus 1 square minus root 5 square upon x minus 2 into root 2x plus 1 plus root 5. So ये root और ये square गया. So that is limit x tends to 2 2x plus 1 minus 5 upon x minus 2 into root 2x plus 1 plus root 5. That is equals to limit x tends to 2 2x minus 4 हो जाएगा 1 minus 5 x minus 2 into root 2x plus 1 plus root 5. So that is limit x tends to 2 2 common x minus 2 upon x minus 2 into root 2x plus 1 plus root 5. So x minus 2 gets completely cancelled out. So that is limit x tends to 2 2 upon root 2x plus 1 plus root 5. So अब जहां जहां x है वहां पे आप 2 रख दो. So it is 2 upon, बोलो 2 2s are 4 4 plus 1 5. So root 5 plus root 5. So the answer is 2 upon 2 root 5. 2 cancel. So the answer is 1 upon root 5. देखो लिमिट के है ना 2 स्टैंडर्ड फॉर्म हैं जो हमें याद रखने हैं. हालांकि सम्स सिर्फ एक के ही हैं. इन्होंने दिए 2 हैं. उसमें पहला वाला है लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल ठीक है. इसमें सबसे पहला जो है वो है कि अगर आपका fx your fx is a0 plus a1x plus a2x square up to an x raised to n हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लिमिट x tends to b. अब बेटा x tends to b है तो आपको कुछ नहीं करना है. जहां जहां x है वहां वहां आपको b लगा देना है. सो अगर लिमिट x tends to b है तो ये हो जाएगा a0 plus a1b plus a2b square up to an b raised to n. b raised to n. सेम वे अगर लिमिट x टेंड्स टू c है सपोज तो तुम्हारा fx क्या होगा a0 plus a1c plus a2c square up to an c raised to n. और ये इसको आप आगे जितना चाहो उतना आप एक्सटेंड कर सकते हो. फिर एक्सटेंड टू d, एक्सटेंड्स टू e, एक्सटेंड्स टू f वगैरह वगैरह. और दूसरा जो तुम्हारा रूल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके ही तुम्हारे सम्स हैं. It is limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. इसका सीधा आंसर है n into a raised to n minus 1. अब ये रूल अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं वो याद रखना सब लोग. सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऊपर भी x माइनस a होना चाहिए नीचे भी x माइनस a होना चाहिए. ठीक है. x माइनस a x माइनस a दोनों का पावर सेम होना चाहिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का पावर 1 होना चाहिए. डिनोमिनेटर में जो x और a है उन दोनों का पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. ऊपर सेम होना चाहिए. फिर वो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो सब फर्क नहीं पड़ता. ऊपर पावर सेम होना चाहिए नीचे पावर दोनों का 1 होना चाहिए. ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा कि ऊपर x और a का पावर सेम होना चाहिए नीचे x और a का पावर 1 होना चाहिए. तो सीधा
आप ये वाला आंसर जो है वो लिख सकते हो, दैट इज n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब इसके सम्स दिखने में कैसे होते हैं, आई विल शो यू। प्लीज एवरीबडी come on to illustration number 25 on page number 159. Page number 159, textbook, illustration number 25. What is the question? First of all, the question states limit x tends to 2, x raised to 5 minus 32 upon x minus 2। अब बेटा सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आप x में सीधा 2 रख दोगे तो 0/0 आ जाएगा, वो तो आपको दिख ही रहा है। दूसरी बात, हो ना हो ऊपर और नीचे x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, बट निकालें कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। x माइनस 2 अपन कॉमन निकाले कैसे, तो सोचो सोचो सोचो, तो फैक्टर्स तो उसके निकलेंगे नहीं क्योंकि x टू 5 माइनस 32 है, तो देयर आर नो फैक्टर्स। तो करिए सु, तो आप ध्यान दो इधर, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2, कैन आई से इट इज x रेज टू 5 माइनस 2 raised to 5। वेरी गुड, 2 रेज टू 5। देख लो दोनों का पावर सेम आ गया, और नीचे भी वही है x माइनस 2, नीचे भी वही है x माइनस 2, लेकिन नीचे x और 2 दोनों का पावर 1 है, आप लोग चेक कर लो, कंपलसरी होना चाहिए। सो यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a एस na n माइनस 1, तो इसका सीधा आंसर होगा, इसमें से लाना है n आगे ले आने का, into a raised to n minus 1, so it is 5 into 2 raised to 4, so it is 5 into 16, so your answer is 80. Illustration number 26, what it states limit x tends to 3, x raised to 5 minus 243 upon x cube minus 27. Now beta what we have to do, इसके फैक्टर्स तो मुझे नीचे वाले के फैक्टर्स आते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर्स मेरे को नहीं आते हैं, और इवन अगर आप डायरेक्टली 3 रख के देखोगे भी तो 0/0 आएगा। तो how the sum would we see? Everybody please concentrate. Can I say this is limit x tends to 3, x raised to 5 minus 3 raised to 5. Am I right? If you want, you can check also. कि 3 raised to 5 243 होता है बेटा, upon x raised to 3 minus 3 raised to 3. Now, yes sir, ये तो ठीक है, ये तो दोनों पावर सेम है, 5 है, लेकिन नीचे पावर ये क्या हो गया है, नीचे तो पावर 1 आना चाहिए, ये तो हमारे साथ पावर 3 आया, पावर 1 होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकली कुछ बताना चाहता हूं, पहले देख लो फिर मैं आपको समझाता हूं क्या हुआ ये। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, x रेज टू 5 minus 3 raised to 5 upon x minus 3 upon x raised to 3 minus 3 raised to 3 upon x minus 3। ये मैंने क्या किया, मैंने दोनों के नीचे x minus 3 डिवाइड कर दिया। तो मैथमेटिकली देखने जाओ तो ये वाला x माइनस 3 और ये वाला x माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, तो बचा तो खाली इतना ही जो था। बट ये x माइनस 3 नीचे डिवाइड करने का मकसद ये था कि एज पर द रूल जो ऊपर x रेज टू 5 और 3 रेज टू 5 माइनस में है वही नीचे होना चाहिए, बट पावर 1 होना चाहिए। तो मैंने दोनों को x माइनस 3 x माइनस 3 से डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं इसको आगे आपको मैथमेटिकली बताऊं तो ये ऐसा हुआ,
x raised to 5 minus 3 raised to 5 upon x minus 3. ये डिवाइड इनटू हो जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा. So it will be x minus 3 upon x raised to 3 minus 3 raised to 3. So ये कैंसिल हो गया. बट ये कैंसिल करना नहीं है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया. अच्छा, किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. यूजिंग limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as na n minus 1 in the numerator as well as denominator, what I am going to get is, बेटा यहाँ पे ये है a raised to n, so 5 into 3 raised to 5 minus 1, और नीचे ये है तुम्हारा 3 raised to 3, so 3 into 3 raised to 3 minus 1. So it is 5 into 3 raised to 4 upon 3 into 3 raised to 2. तो ये 3 का स्क्वायर गया तो ये 4 का पावर 2 हो जाएगा. So this is 5 into 3 का स्क्वायर upon 3. Again ये वाला 3 गया तो ये स्क्वायर गया. So ये बचा 3. So the answer is 15. बोले बेटा, any questions to anybody? Any point? नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो बेटा. Let us go to illustration 27. Limit x tends to minus 2, x raised to 7 plus 128 divide by x plus 2. मैं सम देख के समझ गया था इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है. क्या किया है? नंबर 1, बेटा यहाँ पे -2 है और यहाँ पे देखो +2 है. पहला. दूसरी बात, रूल है x raised to n minus a raised to n upon x minus a. रूल कैसा है? x raised to n minus a raised to n upon x minus. इन शॉर्ट बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है. तो लाओ, अरे अपने कर देते हैं माइनस. कैसे? देखो, can I say this is limit x tends to -2 x raised to 7 minus 2 raised to 7. Or let me put it in this way for you so that you can understand it more easily. Can I say it is x raised to 7 minus 128 and x minus 2. तो ये माइनस माइनस अब देख सकते हो प्लस हो गया बेटा. So that is limit x tends to -2 x raised to 7 minus 2 raised to 7 upon x minus -2. Yes or no? So now using limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as na n minus 1, what you are going to get is 7 आगे ये हुआ ना तुम्हारा a raised to n, 7 आगे आ जाएगा -2 raised to 7 minus 1, so 7 into -2 raised to 6, so 7 into -2 raised to 6 कितना होता है? 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 32, 64, और 64 into 7, 7 4 are 28, 7 6 are 42, 448. This is our answer. Upon x raised to 4 minus, you can check it is 3 raised to 4. So that is limit x tends to 3. सेम चीज हुई यहाँ पे भी बेटा कि x minus 3 तो है, दोनों का पावर 6 है, नीचे 4 है. एक्चुअली नीचे 1 होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x raised to 6 minus 3 raised to 6 upon x minus 3 for the numerator, and for the denominator it is x raised to 4 minus 3 raised to 4 upon x minus 3. Now using the rule limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a as na n minus 1,